اصل میں یہ ہے کہ حوالے اتنے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ بڑا کنفیوز ہو گیا، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے مل گیا. جیسا کہ دوستوں میں بتا رہا تھا سائم بھائی کو بھی کہ مرزا صاحب نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ یہ زمانے میں نبوت کو قطعی نہیں ہے کہ یہی زمانہ ملے گا، یعنی یہی لوگ آئیں گے یا یہی نبی ہی آئیں گے، یعنی اجرائے نبوت کا قطعی عقیدہ نہیں ہے. مراد یہ تھی کہ ان میں سے اگر آپ نے زیادہ زیادہ دنیا میں ماننا بھی ہے نا، تو دنیا میں آپ کو ان میں سے جن کا زمانہ مل گیا فابہا، ٹھیک ہے، ونام، آپ ان کو کہہ لیں. یعنی انبیاء کا مل گیا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے لوگوں کو، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مجددین ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ دیکھیں جی والا آپ کی اسکرین کے اوپر آئینہ کمالات اسلام کا یہ حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 612. آخر میں یہی آیت دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، جو پورا مکمل مقدمہ ہے اسی آیت سے اس سارے کو بیان کیا گیا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ تم 5 وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم علیہم بندوں کی ہمیں راہ بتا، وہ کون ہے؟ نبی اور صدیق اور شہید اور صلحاء. اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان چاروں گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، اب اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ مرزا صاحب کو کوئی یہ قطعی اور حتمی فیصلہ نہیں تھا کہ نبیوں کا ہی زمانہ ملنا چاہیے یا اجرائے نبوت ہونی چاہیے. مراد یہ تھی کہ اطاعت اللہ اور رسول کے لیے اگر تمہیں ان میں سے کسی کا زمانہ ملتا ہے نا، تم ان کی صحبت کر لو. اب چونکہ دوسری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ، یعنی دوسری احادیث سے اور قرآن کے اس کانٹیکٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت آخر الزمان کے لیے ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بیان کیا یا صحابہ نے جس طریقے سے پریشانی کا اظہار کیا، تو اس کا تعلق قیامت کے ساتھ. خیر بہرحال سیم بھائی آپ نے نا دوسرا حصہ جو بیان کیا اس کو میں اٹیچ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کوشش کروں گا اگر آپ کا اس میں کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو. جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. میرے سامنے خلیفہ ثانی کا جو تفسیر صغیر پڑی ہوئی ہے اور میں اس کا ترجمہ ابھی میں نے کھولا ہوا ہے، تو جی اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جس پر اللہ نے انعام کیا. اور اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ منن نبیین آیا ہے، تو منن کا کیونکہ شاید پریپوزیشن ہے جس کا معنی ہے میں شامل ہونا ہے یا میں سے یا اس طرح سے. تو نیچے یعنی انہوں نے جو لکھا ہوا ہے، اوکے جی میں پورا پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ. اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں. اور نیچے پھر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ قرآن کریم میں مہا کا لفظ ہے جس کے معنی ساتھ کے ہیں، مگر مہا کے معنی من کے بھی ہوتے ہیں، اور وہی معنی ہم نے یہاں کیے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہا کے ہم نے یہاں پہ من معنی کیے ہیں کیونکہ اس کے معنی من کے بھی ہوتے ہیں. ورنہ توفنا محل ابرار کی آیت کے یہ معنی کرنے پڑیں گے کہ جب نیک فوت ہوں تو ساتھ ہی ہم کو بھی مار دے، اور یہ ٹھیک. بالبداعت خلط اور خلاف عقل دعا بن جاتی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے معنی اس کا کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے، جبکہ باقی میں نے آن لائن دیکھا ہے وہاں پہ وہ معنی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو اگر آپ پیچھے سے اس کا ترجمہ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یعنی نبیوں میں سے، تو یہ پیچھے والے کانٹیکسٹ کے ساتھ اگلی بات جو ہے وہ آپس میں وہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جاتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ منن نبیین کا یہ ترجمہ کریں گے نبیوں میں سے، تو پھر تو بات تھوڑی سی اور ہو جاتی ہے. باقی باتیں آپ کی ساری میں سمجھ چکا ہوں، سن رہا ہوں، لیکن یہ تھوڑا سا میرا ایک پوائنٹ تھا. اگر آپ اس کو، کیونکہ ہمیں تو اتنا ضرور عربک گرامر کا نہیں پتا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو کر دیں تو. ضرور اس کو کرتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں آپ نے رکھی ہیں سامنے اب جو نکل کر سامنے آئی ہیں وضاحت کے بعد، وہ ہیں ایک ہے ما اور ایک ہے من. گو کہ اس آیت کے اوپر اصولی سوال میں رکھ چکا ہوں جس کا جواب نہیں آتا اور نہ آئے گا. یہ آپ بھی پوچھ کے دیکھ لیجیے گا کہ نبوت کسبی ہے یا وحبی. گو کہ میں اصولی ایک اختلاف رکھ چکا ہوں سوال بنیادی طور پر، مگر پھر بھی چونکہ سمجھنا سمجھانا مقصود ہے، کوئی ہار جیت مقصود نہیں ہے، تو اس لیے آپ کے جو اشکالات ہیں ان کو لینا اور ان پر بات کرنا، ان کو سلجھانا، یہ اصل مقصد ہے ہمارا. اچھا، تو آپ نے رکھا کہ جی وہ ما اور من جو ہے اس کی بحث کو سمجھائیں. دیکھیں
माँ का माना, माँ जो है वो बिमाना मिन इस्तेमाल होता है, इसके लिए दलील चाहिए होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये मिन के माना में इस्तेमाल होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। अब किन जगहों पर होगा, किन जगहों पर नहीं होगा, इसका सवाल है, और उसका तरीका का, उसका उसूल क्या है। मिसाल के तौर पर अगर माँ को मिन के माना में इस्तेमाल करना है, तो अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब यहाँ कोई जिद में माँ की बजाय मिन इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो क्या अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, यानी अल्लाह और सब्र करने वाले शरीक हो जाएंगे, यानी इन्नल्लाह मिनस साबिरीन बन जाएगा तर्जुमा। तो वहां माँ जो है वो माइयत के लिए, साथ के लिए आता है, कि जिस तरीके से सब्र करने वाले होते हैं ना, अल्लाह उनकी पुष्ट पनाही के लिए होता है। ठीक हो गया। अब ये उलाई कमा लजीना का मुराद ये थी, ये जो माइयत थी कि हासुना उलाई का रफीक का, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये माइयत मुराद है, मिन मुराद नहीं है, माइयत मुराद है, क्योंकि रफाकत जो है वो माइयत को उसका तकाजा करती है, यानी डिजायर करती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपकी रफाकत का दावा करता हूं, तो आपकी माइयत उसके पीछे लाजम मलजूम है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं वासिक बन जाऊंगा, या मैं साइम बन जाऊंगा, या मैं बिलाल बन जाऊंगा, या मैं अली बन जाऊंगा, या जो भी कोई बंदे किसी का नाम होगा, एक शेख बन जाऊंगा अगर मैं इनके साथ हूं। मकसद कहने का ये है कि जो रफाकत है और माइयत ये लाजम मलजूम है। अब कुरान के पूरे स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने रखता हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा। वो कहते हैं जी फउलाई का माल लजीना, और आखिर में है रफाकत, हासुना उलाई का रफीका। तो ये दो चीजें मिलकर माँ को मिन के माना से निकाल देती हैं और मैयत पर खास कर लेती हैं, क्योंकि रफीक के लिए साथ जरूरी है, गैदरिंग जरूरी है। ठीक है ना, एक तो ये चीज आप समझ। तो माँ का माना मिन यहां नहीं किया जा सकता, एक चीज। दूसरा, मिन यहां क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिन के माना का तकरार आएगा, ये भी आप समझे। फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, यानी आगे मिन आया है और पीछे माँ को मिन के माना में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि तकरार है। यानी हम माना हुरूफ जर का तकरार है, जो कि सकील है और इबारत को फसी और बलीग नहीं रहने देता। उसकी खूबसूरती माँ के साथ ही है, वो माँ मईयत और ज़रफियत के माना के अंदर ही है, इसीलिए वो माँ लेकर आए हैं, वगरना मिन नहीं ले आते। अब जब आप मिन का तर्जुमा उलाई का मिनल लजीना अनअमल्लाहु, तो वो हो जाएंगे उन लोगों में से, मिनन नबीना उन में से जो नबी हैं, ये सकील हो जाएगी इबारत। तो मिनन नबीयीना व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, ये मिन तबईजी है, यानी बाज लोग जो हैं, ठीक है, वो नबियों के साथ अल्लाह ताला जोड़ देंगे, बाज लोगों को सिद्दीकीन के साथ। कब? कयामत के दिन, क्योंकि मैं चीज एस्टेब्लिश कर चुका हूं कि कुरान का टेक्स्ट और हदीस की शक्ल में जो शान नज़ूल है, जो उसका यूज ऑफ एरिया ऑफ यूज है, इंप्लीमेंटेशन है, वो बयान कर रहा है कि ये वफात के बाद कयामत के दिन की रफाकत होगी। इसलिए समझे कि बाज लोगों को अंबिया के साथ दर्जे के एतबार से जोड़ा जाएगा, बाज लोगों को शुहदा के साथ, बाज को सालिहीन के साथ, और बाज को सिद्दीकीन के साथ। ठीक है ना जी। तो ये है हकीकत इस सारी आयत की। जो मिन है वो इस तनाजुर के अंदर समझना चाहिए। यानी मिन को आसान लफ्जों के अंदर आप समझे कि मिन तबईज का है। अरबी जुबान में तबईज कहते हैं बाज चीजों को बाज चीजों के साथ कैटेगराइज कर देना, यानी जुज़ी तौर पर बाज चीजों को बांट देना। ठीक है। तो यहां पर जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, वो इनाम याफ्ता लोगों के साथ तो होंगे, मगर उनको कैटेगराइज कर दिया गया है तबईज के जरिए, मिन के जरिए, कि बाज नबी के साथ, बाज सिद्दीक के साथ, बाज शुहदा के साथ, बाज सालिहीन के साथ, वो अपनी अपनी कैटेगरी में बांट दिए जाएंगे। कब? कयामत के दिन, जिसको मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूं। तो माँ रफाकत की वजह से माइयत के माने में आएगा, और मिन तबईज की वजह से कैटेगराइज के माने के अंदर आएगा, उसमें कतईयत नहीं है। यानी इस आयत से मैं अक्सर जब मेरे साथ दोस्त पूछते हैं तो मैं उनको कहता होता हूं, जो अहमदी दोस्त हमारे हैं, कि इस आयत के बजाय कुछ और आयत पेश करो, इसमें कतईयत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ माने आ रहे हैं। साइम भाई, आपकी इजाजत हो तो मैं आगे चलूं, या आप इस पर मजीद को बात करना चाह रहे हैं? जी, ये तो काफी हद तक बात इस पे हो गई है, क्लियर हो गई है। अगर आपको कोई सवाल है ना साइम भाई, अगर कोई काउंटर क्वेश्चन है, जरूर पूछना है, अंदर नहीं छोड़ना, आपने रहने नहीं देना, उसको पूछ लेना है, कोई बात नहीं। एक छोटा सा सवाल मेरा ये बन रहा है इसके ऊपर कि जिस तरह यहाँ पे माह को मिन के मानों में इस्तेमाल किया गया है, क्या मिन भी माह के मानों में इस्तेमाल होता है कहीं कुरान में? नहीं नहीं, मिन जो है वो माह के माना के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। मिन जो है वो करीबन 4 या 5 माना के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें ज़रफियत भी है, ठीक है, और इला से मिन इस्तेमाल किया, फ्रॉम टू, और दूसरा तबईज के लिए होता है, जिसका मैंने अभी आपको बयान कर दिया कि ये कैटेगराइज के माना के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां तबईज के लिए इस्तेमाल हुआ है, माँ के नहीं। माँ जो है वो मिन के माना के अंदर इस्तेमाल करने के लिए आपके पास करीना चाहिए ना। ठीक है, वो सही कह रहे हैं, तवफ़्फ़ना माल अबरार, ठीक है, कि हमें
उनकी मैयत में वफात दे देना, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वहां मिन कर लें आप, मगर यहां मिन करने के लिए करीना चाहिए आपको। यहां मिन करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है जबकि मां के साथ माना ठीक हो रहा है? याद रखें, किसी भी हरूफ जर को जब आप हरूफ जर का माना किसी दूसरे माना के अंदर इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसके लिए करीने के साथ साथ उस माना के इस्तेमाल की कोई इल्लत भी चाहिए ना। जब मां का माना ठीक बैठ रहा है, ये याद रखे, अरबी जुबान का एक कायदा है, अत-तरकीबु तहतल माना। जो लोग इल्मुन नहव में माहिर हैं, जिन्होंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, शरह इब्न अकील पढ़ी होगी और इस तरीके से मुगनिल लबीब पढ़ी है, या शरह अल्फिया पढ़ी है, इसी तरीके से इमाम सीबवे की अल किताब पढ़ी है, और अरबी की जो बड़ी किताबें पढ़ी हैं, वो इस मेरे उसूल से मुत्तफिक करेंगे। गो कि मैं कोई अरबी का मास्टर नहीं हूं, मगर वो मुझसे मुत्तफिक होंगे। अत तरकीब तहतल माना एक मुसलमा और मुसद्दका उसूल है अरबी ग्रामर के अंदर, कि जब तक आपकी लुगत, आपका माना ठीक हो रहा है, वो तरकीब दुरुस्त मानी जाएगी। मगर मिन के साथ तरकीब दुरुस्त नहीं बैठ रही और मां के साथ तरकीब दुरुस्त बैठ रही है, क्योंकि मिन दो वजह से नहीं बैठ रहा। नंबर एक, मां का हकीकी माना में इस्तेमाल करने के लिए करीना मौजूद है, और नंबर दो, मिन के साथ अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो तकरार के साथ मिन आया है, जो कि इबारत के लिए फकीर है, वो समझ से बालातर है कि क्यों मां को मिन के माना के अंदर इस्तेमाल करना है। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। अगर आपकी मसला हल हो गया तो आगे चलते हैं। आमिर, मैं एक चीज मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूँ साइम को, कि साइम जिस तरह आमिर ने ये चीज बयान की है, अब मुझे इल्म नहीं है कि आप अरबी की सर्फ व नाव में कितने माहिर हैं या कितना कुछ जानते हैं, लेकिन जिस तरह आमिर बयान कर रहा है ये चीज़, आप जैसे मुजीब राशिद साहब हैं, हैदर अली जफ़र हैं आपके जर्मनी में, या मुफ्ती मुबशर साहब, मुफ्ती कालू हैं, मुबशर कालू ही हैं, हाँ वो भी मुबशर ही, तो आप उनके सामने रख सकते हैं कि अगर वो समझते हैं कि जो कुछ आमिर ने बयान किया है ये ऐसे नहीं है। अब हमारे अंदाजे गुफ्तगू से, हमारे इस तरीक से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यकीन करें कि अगर उनमें से कोई साहबी आकर इस पर हमारी इस्लाह करना चाहे, हमारी करेक्शन करना चाहे, हमारे साथ बात को खुद समझना चाहें, तो दे आर मोस्ट वेलकम। हमें खुशी होगी, या हमें अपने पास बुला लें, मतलब जो भी कोई जगह है, वी आर रेडी टू गो देयर टू अंडरस्टैंड द थिंग। इसमें कोई बहस मुबासा नहीं होगा। ये चीज मैं आपके सामने रखना चाहता था कि आप मतलब फर्दर उनसे पूछ सकते हैं जो इस चीज के माहिर हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, जरूर। मैं क्योंकि अभी वीडियो में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में हमने टाइम को भी देखना होता है, तो ये रिपीट करके हम सुनेंगे, पॉइंट्स जो भी हैं ये लिख के, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पहले मैं अपने हमारे जो ओरिजिनल मुरब्बी साहब हैं उनसे रब्ता करूं, श्योर, और उसके बाद फिर आगे कोई भी क्वेश्चंस हुए तो हम दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। श्योर। तो इस आयत के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि जी मेरे ख्याल से इस पर काफी बात हो गई है। आप अगर दूसरी आयत क्या थी, आपने खातमुन नबीयीन की पेश की थी, वो क्या कहना चाह रहे? मेरे ख्याल से नासख और मनसूख पर बात की थी, राइट? जी, दूसरी आयत को मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम काफी हो गया, हम उसको नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में कर लेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, वो हवालाजात मैंने शेख साहब को तो मिल गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं भेज सका हूँ टाइम की कमी की वजह से। वो हजरत ऐसे कर लेते मसीह मौद इस्लाम का जो था, जी अपना साइम भाई ऐसे कर लेते हैं कि आज जो है वो सूरह निसा की जो आयत 69 है उसको हम कवर कर दिया, हमने उसको पैकअप कर देते हैं। उस पर जो आपके मजीद तहकीक करिए, जो मैंने गुफ्तगू की है उसमें से पॉइंट्स नोट करके उसके सवालात बनाकर आप तहकीक कीजिए। जो एतराजात और जो मेरी गलती है उस पर हम दोबारा प्रोग्राम कर लेंगे, उस पर हम जवाब कर लेंगे, यानी दोबारा एक सेशन रख लेंगे सवालों जो आपके हवाले से। एक तो ये चीज होगी।